سیما اور مالا دونوں سگی بہنیں تھیں۔ ان کی ماں اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان کے بابا خالد نے نجمہ نامی عورت سے دوسری شادی کر لی تھی، مگر نجمہ کو صرف اور صرف خالد کی دولت سے مطلب تھا۔ سیما اور مالا سے ان کی سوتیلی ماں بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی۔ سوچا تھا خالد سے شادی کر کے اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لوں گی، لیکن اس کی دونوں بیٹیاں تو سانپ کی طرح میرے سر پر بیٹھی ہیں۔ ان کی شادی بھی تو نہیں ہو رہی ابھی، لیکن شادی پر بھی تو خرچہ ہوگا، اور میں نہیں چاہتی کہ خالد کی دولت میں سے 1 روپیہ بھی فالتو خرچ ہو۔ آخر کل کو اس کی حقدار میں ہی تو ہوں گی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ کچن میں پراٹھے بنا رہی ہو۔ بن گیا کھانا؟ مجھے کام پر بھی جانا ہے۔ آپ بیٹھیے، میں ابھی لاتی ہوں۔ کیوں چڑیل اتنی دیر سے کھانا بنا رہی ہے؟ کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ اپنے باپ کے اٹھنے سے پہلے کھانا بنا لیا کر۔ ماں، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، کھانا بس بن ہی گیا ہے، بابا کے لیے لے جائیے۔ جی چاہ رہا ہے جانے سے پہلے دونوں بچوں سے مل کر جاؤں۔ نہیں، میرا مطلب ہے وہ دونوں ابھی سو رہی ہیں اور ان کی نیند خراب کرنا اچھی بات نہیں۔ لیکن نجمہ وقت تو دیکھو، دن کے 10 بج رہے ہیں۔ تم ہمیشہ ان کی نیند کا خیال رکھتی ہو، سب کے اٹھنے سے پہلے ہی کھانا بنا لیتی ہو اور گھر کے کام بھی کر لیتی ہو۔ آخر آپ کو بھی تو اپنی پسند پر ناز ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ دراصل نجمہ خالد کو کبھی بھی اپنے بچوں سے ملنے نہیں دیتی تھی اور ہمیشہ یہ بہانہ بناتی کہ وہ سو رہی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ دونوں بچوں کو صبح 4 بجے ہی اٹھا دیا کرتی تھی اور ان کے بابا کے اٹھنے سے پہلے ہی کھانے سے لے کر گھر کے سارے کام کروایا کرتی تھی، یہاں تک کہ انہیں سونے بھی نہیں دیتی تھی۔ کیوں سیما مہارانی، تیرے ہاتھوں میں جان نہیں؟ کپڑے صاف کیوں نہیں دھل رہے؟ تمہیں یہ بھی سکھانا پڑے گا۔ ماں، میں نے تو کپڑے خوب رگڑ رگڑ کر دھوئے تھے، وہ کل رات آندھی کی وجہ سے دھول مٹی لگ گئی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، اب یہ سارے کپڑے پھر سے دھو، اور اس بار غلطی سے بھی دھول نہیں ہونی چاہیے۔ سیما بڑی محنت سے وہ سارے کپڑے پھر سے دھو لیتی ہے اور انہیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں ڈال دیتی ہے، لیکن 1 گھنٹے بعد جب وہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو نجمہ ان سوکھے ہوئے کپڑوں پر پانی ڈال دیتی ہے۔ ماں، آپ نے ان کپڑوں پر پانی کیوں ڈالا؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تو ان کپڑوں کو دوبارہ دھوئے۔ تیرا ایک بار کیا ہوا کام مجھے پسند کب آتا ہے؟ دوبارہ دھوئے گی تو اچھی طرح صاف ہو جائیں گے، یہ میں نے تیرے بھلے کے لیے ہی کیا ہے، تو سسرال جائے گی تو تیرے کام آئے گا۔ دونوں بہنیں نجمہ کی اس بے رحمی کو بڑے صبر سے برداشت کر لیا کرتی تھی۔ سیما پھر بڑی محنت سے کپڑے دھونے لگتی ہے، تبھی چھوٹی بہن مالا اس کے پاس آ کر بولتی ہے، باجی، ہم کب تک اس طرح ستیلی ماں کے ظلم سہتے رہیں گے؟ ہم بابا کو سب کچھ کیوں نہیں بتا دیتے؟ مالا، بابا نے ان سے دوسری شادی ہمارے لیے ہی کی تھی، اور جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہم دونوں بہت دکھی ہیں اور بچپن سے لے کر اب تک ہم اتنا کچھ سہ رہے ہیں، تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے بھلائی چپ رہنے میں ہی ہے۔ جب سے وہ عورت آئی ہے کسی نہ کسی بہانے ہمیں بابا سے ملنے ہی نہیں دیتی۔ مجھے وہ چڑیل لگتی ہے، چڑیل، اور بابا بھی ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، اور انہیں کیا مطلب کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو۔ مالا کی یہ ساری باتیں ان کی سوتیلی ماں سن لیتی ہے۔ ارے ارے، تمہارے دل میں میرے لیے اتنا زہر بھرا ہے، میں تو جانتی ہی نہیں تھی، آج میں تمہارا یہ زہر نکال ہی دیتی ہوں۔ ماں، وہ مالا کا یہ مطلب نہیں تھا، تم دونوں کو تو میں ابھی سیدھا کر دیتی ہوں۔ ہاں، اس کے علاوہ تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ تم ایک ظالم عورت ہو، سمجھی؟ میں نہیں ڈرتی تم سے، سنا تم نے؟ جو کرنا ہے کر لو، مالا نے بے خوف ہو کر کہا۔ یہ سنتے ہی نجمہ نے موٹے ڈنڈے سے مالا کو خوب مارنا شروع کیا۔ ماں، اسے درد ہو رہا ہے، چھوڑ دو اسے، ماں پلیز چھوڑ دو اسے۔ رک، تجھے بھی بتاتی ہوں۔
नजमा उन दोनों को खूब मारती है। वो दोनों तकलीफ से रोने लगती हैं। उनके जिस्म पर जख्म पड़ जाते हैं। अब पहुंच गई होगी तुम दोनों के कलेजे को ठंडक। चली थी मेरी चुगली करने। बाजी, हमें बाबा को सब बताना ही होगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी बहन, तुम बहुत तकलीफ में हो। कहाँ है मेरी दोनों गुड़िया? सुनिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं एक सौतेली माँ हूँ? क्या मैंने कभी अपने बच्चों को प्यार नहीं किया? आपके बच्चों को क्या मैंने अपने बच्चे नहीं समझा? ऐसा क्यों कह रही हो? बल्कि तुम तो उन्हें बिल्कुल सगी माँ की तरह चाहती हो। मगर हुआ क्या है? आज उन दोनों ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे सौतेली माँ कहा, यहाँ तक कि मुझे नागिन भी बोला, और ये कहा कि मैं हमेशा उन पर जुल्म करती हूँ। लेकिन ये तो मेरा दिल जानता है कि मैंने उन्हें हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा है। लेकिन मालूम नहीं आज उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। ये सुनकर खालिद आग बगोला हो गया और गुस्से से दोनों बेटियों को आवाज लगाई। बाप की आवाज सुनकर दोनों बाहर आई। बाबा, अच्छा हुआ आज आप यहाँ आ गए। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बात तो मैं भी तुम दोनों से करना चाहता हूँ। ये तुम्हारी सगी माँ की तरह है, सुतेली नहीं। तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़कर कब की चली गई। इसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें हर खुशी दी। इसके बावजूद तुम दोनों ने इसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? लेकिन बाबा, खालिद सीमा की बात सुने बिना उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपनी माँ को सुतेली और नागिन कहो? बाबा बस बहुत हुआ। अगर आपको अपनी बीवी इतनी ही अच्छी लगती है तो रहिए उसके साथ। हम दोनों बहनों को ना इस घर में रहना है और ना अपने बाबा और सुतेली माँ के साथ। हाँ तो ठीक है, निकल जाओ तुम दोनों इस घर से। मुझे तो तुम दोनों को अपनी बेटियां कहते हुए शर्म आती है। ये कहकर खालिद अपनी बीवी के साथ वहां से चला जाता है। दोनों बहनों के सर पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। घर से निकलते वक्त दोनों बहनों ने अपने साथ अपनी मरहूमा माँ के हैंडबैग को ही आखिरी निशानी के तौर पर अपने साथ लिया। रात के अंधेरे में दोनों घर से बाहर निकल गईं और इधर उधर भटकती रहीं। नजमा तो बहुत खुश थी। जो मैं चाहती थी वो तो हो गया। अब वो दोनों चुड़ैलें यहाँ से दफा हो गईं। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में दोनों बहनों की हालत खराब हो रही थी। बाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? उस नजमा ने बाबा को अपनी बातों से हमारे खिलाफ इतना भड़का दिया है कि वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। माँ कहती थी कि हमेशा बुराई की हार होती है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ कैसे बुरा हो सकता है? बाजी, आपके हाथ में ये माँ का हैंड बैग है ना? हाँ, माँ की आखिरी निशानी के तौर पर। ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। अभी किसी पनाहगाह में जाकर रात गुजार लेते हैं और सुबह उठकर किसी काम की तलाश में निकल पड़ेंगे। हाँ, मगर देखो तो माँ के हैंडबैग में कुछ है कि नहीं। शायद कुछ पैसे ही मिल जाएं, जो माँ निकालना भूल गई हो। ये कहकर माला अपनी मरहूमा माँ के हैंडबैग में हाथ डालती है तो उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। बाजी देखो, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे हाँ माला, इसमें तो पैसे हैं। ऐसा करते हैं, आज की रात गुजारने के लिए हम कोई जगह ढूंढते हैं। सीमा ने खुशी और हैरत से कहा। फिर दोनों एक पनाहगाह में जाकर सो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ खालिद की मरहूमा बीवी उसके ख्वाब में आती है। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं आपके ऊपर अपनी दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी छोड़कर चली गई। आप एक अच्छे बाप का फर्ज अदा करने में नाकाम रहे। आप एक गलत औरत को उन बच्चियों की माँ बनाकर ले आए। आप जानते भी नहीं कि उस औरत ने हमारी बच्चियों के साथ क्या सलूक किया है। ये कहकर उसकी मरहूमा बीवी खालिद को नजमा के ढहाए गए तमाम मजालिम के मंजर दिखाती है। ये सब देखते ही खालिद घबरा कर उठ जाता है। उस वक्त तक सुबह हो चुकी होती है। उठ गए आप, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। साली मोरत, तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरी बच्चियों के साथ बहुत बुरा किया।
मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बेटियों को ढूंढना होगा। खालिद गुस्से से बोलता है और बाहर निकल जाता है। नजमा समझ जाती है कि अब उसका भांटा फूट चुका है। खालिद फौरन अपनी बेटियों को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ देर की तलाश के बाद उसे अपनी बेटियां एक बस स्टैंड पर अपनी मरहूमा मां के हैंडबैग के साथ बैठी नजर आईं। दोनों बच्चियों को देखते ही उसने उन्हें गले लगा लिया। मैं सब जान चुका हूँ बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं बाबा, आपको सच मालूम हो चुका है, यही बहुत है। चलो अब घर चलते हैं। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहां वो नागिन रहती है। मैं अभी धक्के मारकर उसे घर से निकाल देता हूँ, तुम परेशान मत हो। वो जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नजमा 3 हट्टे कट्टे पहलवानों के साथ खड़ी है, जो उन तीनों को घर में आने से रोक रहे थे। ये सब क्या ड्रामा है नजमा? ये कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि अब ये घर सिर्फ मेरा है। आपको तो याद ही होगा मेरे सरताज, उस दिन मैंने आपसे कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए थे, ये कहकर के गरीबों में कुछ खैरात बांटनी है। मगर मैंने तो झूठ बोला था। वो तो इस घर के पेपर्स थे जो आप खुद मेरे नाम कर चुके हैं। मुझे अब खुद पर शर्म आती है। मैंने किस घड़ी में तुझसे शादी की थी? तू औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है, चुड़ैल। बस अब बहुत हुआ। पहलवानों, इन तीनों की चटनी बना दो। पहलवान जैसे ही उन तीनों की तरफ बढ़ते हैं, सीमा जोर से चिल्लाकर अपनी मरहूमा माँ के हैंडबैग में हाथ डालकर कहती है, काश मेरे पास कोई चाकू होता। और फिर जैसे ही वो हैंडबैग से अपना हाथ बाहर निकालती है, उसमें एक चाकू होता है। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा। ये देखते ही तीनों पहलवान एक कदम पीछे हट जाते हैं। तभी नजमा पहलवानों से कहती है, मैं तुम तीनों को कोई पैसा नहीं दूंगी। जिसके बाद पहलवान सीमा से जबरदस्ती चाकू छीन लेते हैं। फिर माला कहती है, काश मेरे पास इस वक्त एक मोटा डंडा होता जिससे हम इन पहलवानों की पिटाई कर सकते। और तभी हैंडबैग से एक मोटा डंडा खुद ब खुद बाहर निकल आता है और अपने आप ही उन पहलवानों की पिटाई करता है। जिसके बाद वो पहलवान वहां से भाग जाते हैं। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तब नजमा को समझ आता है कि बच्चों के पास जो हैंडबैग है वो जादुई है। दिल में कोई भी बात सोचकर उस हैंडबैग में हाथ डालो तो वही चीज बाहर आती है जो हमें चाहिए। नजमा जबरदस्ती सीमा और माला से वो हैंडबैग छीनने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में उसके कपड़ों में आग लग जाती है और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगी, हाँ बचाओ मुझे। हैंडबैग नजमा के कपड़ों में लगी हुई आग बुझा दो। सीमा के इतने कहते ही हैंडबैग में से बहुत सा पानी निकलता है और आग बुझा देता है। तब नजमा को अकल आती है कि उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। अभी जब मैंने मौत को इतने करीब से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है और मैंने ना समझी में तुम पर इतना जुल्म किया। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम लोगों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। और यही तुम्हारे हक में अच्छा होगा। आज के बाद तुम मुझे इस गांव में कहीं भी नजर आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नजमा डर के मारे वहां से भाग जाती है। उसके बाद दोनों बहनें अपनी मरहुमा माँ के हैंडबैग को दिल से लगा कर रखती हैं और अब खालिद काम के साथ साथ अपनी बेटियों पर भी पूरी तवज्जो देता था और अकेले ही उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देता था।